Question, there are two places A and B 100 meter apart. So let these places, if you look at it here in the figure, this place A and B, so it is the distance, this distance is 100 meter. In between A and B, the distance is 100 meter, right? One car start from A, another car start from B at the same time. At the same time, this blue car and this yellow car start at the same time. Car travel in the same direction. So there are two cases here. This is case 1, when the car travel in the same direction. When car travel in the same direction, and there is another case when car travel in the opposite direction. So there may be the two cases are there in the same direction at the different speed. The car, if speeds are different, they meet in 5 hours. So the time taken in this case is 5 hours. The time taken in this case is 5 hours. And if they travels towards each other, if it is the case, second case, when the car travels towards each other, means in the opposite direction, they meet in 1 hour. तो वो 1 hour में मीट कर जाती हैं. सो हमें फाइंड करना है व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार. दोनों कार की स्पीड्स क्या होंगी. सो हम लोग लेट करते हैं इस कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ येलो कार इज y किलोमीटर पर आवर, राइट. दोनों की स्पीड है, एक की स्पीड हमने लेट की x और येलो कार की स्पीड y लेट की हमने. दिस डिस्टेंस 10 इज गिवन, 100 इज गिवन बिटवीन ए बी. और ये दोनों कार यहाँ पे आके पॉइंट सी पे आके दे मीट विद ईच अदर, राइट. नाउ एनीवन कुड यू प्लीज टेल मी बट इफ आई राइट द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस इन दिस डिस्टेंस ए बी and BC and AC. So the relation I can write AC is equal to, AB plus, I can write like this. ऐसे मैं लिख सकता हूँ AB plus BC is equal to AB, और BC की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, इक्वल टू, यस राइट, इज इक्वल टू AC. So this is the distance relation in this case. Now I hope you all know how to find out the distance. The formula to find out the distance is, we know that speed is equal to distance upon time, and distance is equal to, if I shift this time on that side, is equal to speed into time. Yes, right. So the formula for distance is speed into time. Now let us find the speed AB, distance AB. AB distance find करते हैं. So what is this AB distance? It is given 100. Okay. Let me write it here 100 plus. Now let us find this distance BC. तो distance BC फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए. वन थिंग इज स्पीड, डिस्टेंस का पता करने के लिए स्पीड का पता होना चाहिए. तो BC को देखेंगे, अगर आप ये कार मूव कर रही है स्पीड y से, और टाइम कितना दिया था क्वेश्चन में, टाइम टेकन इज 5 आवर. तो इस कार को B से C पे पहुंचने में 5 घंटे लगे हैं. सो द टाइम इन दिस केस इज 5 आवर. सो व्हाट इज द डिस्टेंस BC? Speed into time, so it can be written as 5y, right, is equal to AC. AC देखिए, the AC distance is covered by this car, this blue car. ये blue car ने इस AC distance cover की है कितने टाइम में, 5 आवर में. तो 5 आवर में ये कार यहाँ से A से यहाँ पे पहुँच गई है, ठीक है. A से C पे पहुँच गई है कार, ब्लू कार. स्पीड थी x एंड टाइम था यहाँ पे 5 आवर. सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड कितनी थी x, टाइम कितना लगा 5, तो इट कैन बी रिटन एज 5x like this, right. We can write like this. Now let me simplify this equation. Take 5 common from here and shift this x on that side. So 100 on this side, 5x minus 5y. If I take 5 common from here, so it can be written as x minus y equal to 100 upon 5, or we can say that x minus y is equal to 20. So this is the first equation we have obtained from the first relation, right. I hope this equation is clear to you all. Now look at the second case. In the second case, can I write the relation like this, AC plus BC is equal to AB. I can write like this, AC plus BC equal to AB, right. Now Sir, AC minus BC. no, in this case, in the second case, if you look at this,
distance AC, this distance and this distance BC can be written as AB in this case, right? So what is the speed of this car? Blue car speed is x. टाइम इज गिवन इन द क्वेश्चन में टाइम दिया था इन कार को, कितना टाइम लगा दोनों को मीट करने में? 1 आवर। 1 आवर। तो इसकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द येलो कार इज y इन दिस केस, और टाइम इसने ट्रेवल किया 1 आवर। सो अगर हमें AC डिस्टेंस फाइंड करना है, AC इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस ब्लू कार। ब्लू कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट डिस्टेंस इज AC। कितनी स्पीड थी? x। टाइम कितना लगा? 1। तो क्या आएगा? डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू x इंटू 1 प्लस। अब BC देखिए, BC की स्पीड कितनी है कार की? y। टाइम कितना लगा? 1। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम y इंटू 1। AB इज गिवन इन द क्वेश्चन। AB डिस्टेंस कितना गिवन है क्वेश्चन में? 100 किलोमीटर। सो AB की जगह पे हम लोग रख सकते हैं 100। So it can be written as x plus y is equal to 100. If I take 1 common, so I can write 1 here. So this is the main important thing, is this thing. This is the main important thing I have explained here in the detail to find out the equation 1 and equation 2. Now it is easy to solve these equations. I also want to explain you a short method for this. ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है आपको कैसे कैसे ये इक्वेशंस हम लोगों ने फॉर्म की है। अब इसके लिए मैं एक शॉर्ट मेथड भी बताता हूँ आपको। यू कैन डायरेक्टली फॉर्म द इक्वेशन। व्हाट इज दैट शॉर्ट मेथड इज, अब आपको देखना है जब कार ट्रैवल करती हैं सेम डायरेक्शन में, सपोज यू आर मूविंग इन दिस कार और एक कार आपके पास से जा रही है विद द सेम स्पीड, तो उस कार की स्पीड आपको क्या लगेगी अपनी कार में बैठे हुए? ऐसा लगेगा कि वो कार चल ही नहीं रही है। और अगर आप मूव कर रहे हैं 40 की स्पीड से और एक कार आपकी साइड से 50 की स्पीड से जा रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कितनी स्पीड से चल रही है वो? डिफरेंस 10 की स्पीड से। तो माइनस करना पड़ता है हमें। व्हेन कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन वी नीड टू सब्ट्रैक्ट द स्पीड टू गेट द स्पीड। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब देखिए, आप कार ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, आप इधर से जा रहे हैं, एक कार इधर से आ रही है, तो आप 30 की स्पीड से जा रहे हैं, वो कार आ रही है 40 की स्पीड से, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो 70 की स्पीड से क्रॉस कर गई है। तो जब कार अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो हमें करना पड़ता है स्पीड को ऐड। तो ये कंसेप्ट याद रखना है, जब हम लोग सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड को सब्ट्रैक्ट करना होता है, एंड व्हेन वी ट्रैवल इन द अपोजिट डायरेक्शन स्पीड को ऐड करना होता है। अब देखिए, आप डायरेक्ट इक्वेशन बना रहा हूं मैं। स्पीड क्या थी पहली कार की? x। केस कैसा था? सेम डायरेक्शन का, तो x माइनस वाई करना पड़ेगा। तो स्पीड तो वी गेट द एक्चुअल स्पीड, x माइनस वाई किया मैंने। अब उन्होंने टाइम कितना, डिस्टेंस कितना दे रखा था, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने अपोजिट डायरेक्शन की स्पीड क्या आती है? x माइनस वाई ऑलवेज। तो ये ध्यान रखना है, अपोजिट डायरेक्शन की स्पीड जो सेम डायरेक्शन की जो स्पीड होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है x माइनस वाई। तो डिस्टेंस कितना था? 100। टाइम कितना दे रखा था? 5। सो वी कैन डायरेक्टली फ्रॉम हियर ऑल्सो। सो नो नीड टू डू ऑल दैट थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन्ड to understand the question. So you can directly start the question by writing this equation, x minus y equal to distance 100 upon time. Look at this equation, second equation. अब मैंने बोला अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो स्पीड कितनी थी? x। किससे ऐड हो जाएगी? y से। तो डिस्टेंस कितना गिवन है? 100। तो स्पीड हमारा आ गया इधर, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 100। टाइम कितना दे रखा है? 1। सो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की जगह पे मैंने 100 रख दिया और टाइम की जगह पे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो इट्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 100. So let us apply the elimination method here. This cancel this, 2x is equal to 120. So the value of x in this case is 60 kilometer per hour. So speed of the first car is 60, right? Now x plus y is equal to 100. So what is the speed of the second car? Y equal to 40. So speed of first car is 60 and speed of second car is 40. I hope it's clear to you now.